Welcome to my show, Life and Living. Today, my guest is Mr. Nilashish Ghosh Dastidar. नीलाशीष जी एक कृषि अनुसंधानी हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एन एग्रीकल्चर रिसर्चर. नीलाशीष जी से हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं. पहले नीलाशीष जी आप थोड़ा अपना बताइए, अपना अभी आप क्या करते हैं, किस पोजीशन में हैं, कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं. Thank you for inviting me to this gala show, Life and Living. After passing out my masters in agriculture, and I had my major in genetics and plant breeding. So we are called as plant breeders. हमें बोला जाता है कृषि प्रजननविद, पादप प्रजननविद. तो I was picked up by from the campus itself by the then the fastest growing seed company of India, agriculture seed company of India, Pro Agro Seed Company Private Limited. I was bound to go to some tea garden. It offered to me at that time. It offered a lot of adventure, romance with the nature. So, but Pro Agro picked me up for a joint venture, which was India's first genetically modified, जिसको transgenic बोला जाता है, project, which was on mustard. So my advisors, I passed out from Pantnagar, Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology at near Nainital at Pantnagar. So they all suggested me to, why are you going to these tea gardens? You join this company, this transgenic project. And some people, they suggested me to go for PhDs. But I had different plans actually. I shall come to that later on. Because I had to join a company, or I had to start earning at that time. It was my first goal because of another compulsion. So I joined this company, Pro Agro. Pro Agro PGS was the joint venture for transgenic mustard development hybrid. Now it has come back to the forefront. It's one of the hottest subjects in India now. This issue is before the Supreme Court, whether to deregulate it or not. Now the ball is being played by Delhi University. It's the government's project now. Anyway, we started it long back in 94. And I worked there till 2004. Our company was there. And then the project was called off because of financial constraints, because a lot of money was being wasted and we were not getting the deregulation in time. Meanwhile, my company got picked up. It was purchased by one German multinational, Hext. Then immediately Hext and Schering, they got together to form Agrivo. Then Agrivo merged with another French company, Ron Poulenc, to form Aventis. And finally, Aventis's agri-business was acquired by Bayer AG. So you see, I never resigned from my post, but my company got changed 4-5 times. This happens in corporate world. नीलाशीष जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे ब्रेक करती हूँ इस बात को, अभी हमारा कन्वर्सेशन को. I just want to know about your initial journey. आपने एक तो देखिए, आपने बता दिया कैसे, कहाँ, कब आप ज्वाइन किए, किस कंपनी पे पहुँचे, किस लेवल पे पहुँचे, मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ थे आप, कहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचे, इसकी जानकारी मैं क्विक थोड़ा सा ले लूँगी आपसे. ओके. एनीवे, मैं पैदा हुआ कलकत्ता में, बट होम टाउन जो है वो है चुचुड़ा. Chuchura was a Dutch colony basically, established by the Dutch. ये जो गंगा के जो वेस्टर्न बैंक है, it was inhabited by different European settlements, European nations basically. The Portuguese, they were in Bandel. Hooghly was also established by them. Hooghly was at that time, it was the earning capital for Mughal India. बांग्ला का जो सूबादार हुआ करता था,
वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भेजता था मुगल दरबार को। और जो हम बोलते हैं ना कि 1757 में इंडिया एंड चाइना पुट टुगेदर दे हैड 52% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जीडीपी, ब्ला ब्ला ब्ला, उसका एक मेजर शेयर था ये जो बंगाल का। यहाँ से ट्रेड होता था यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उनके साथ। इवन बैक टू रोमन टाइम्स यहाँ से मसलिन एक्सपोर्ट होता था रोम में। और आपको रोमन जो कोई सा भी मूवी आप देख लीजिए, पीरियड मूवीज़, उसमें जो क्वींस है या जो भी आपके अच्छे घर के घराने के जो भी औरतें दिखाई देते हैं, दे यूज टू वेयर मसलिन। और वो बनता था ढाका में मेजरली, क्योंकि उसके लिए जो कॉटन है वो पद्मा के जो चर होता है, जो रिवर के, टापू रिवर टापू पद्मा वहाँ पे रिवर के, उगता था। और वो बहुत टेडियस जॉब हुआ करता था एंड स्किल्ड जॉब। एनीवे दैट यूज टू कम टू हुगली एंड वहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो ये चिंसूरा हमारा डच सेटलमेंट था। डच ये लोग काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स हुआ करते थे एंड वेरी नाइस पीपल टू द इंडियंस ऑल्सो, नेवर टॉर्चर्ड इंडियंस, नेवर कन्वर्टेड फोर्सफुली, एंड दे हेल्प द पुअर ड्यूरिंग फेमिन्स। तो जो भी है चिंसूरा में पढ़े हम। ओरिजिनली आई बिलोंग टू बोरीशाल, ईस्ट बंगाल. My surname is Ghosh Dastidar. We all Ghosh Dastidars, we are from a particular clan, one single family. Our journey started from Gabha, Bodishal. We worked in my ancestors. I am from the 26th generation of our clan, of our particular family. It all started from the Raj Darbar, Gaud. King Adishur brought 5 Brahmins and 5 Kayastha families from Kanauj. The 5 Brahmins, they were brought in to spread Vedic culture, the Havans, etc., and to start teaching, Vedic teaching primarily. And the Kayasthas, they were supposed to do all those official work for the king. And Kayasthas are basically from amalgamation of Kshatriya and Brahminic culture also. So they took care of the military side of the king also. My great-grand ancestor, Raghunath Ghosh, he was given a title of Dostidar because he used to carry the seal as the authorized signatory for the Nawab also. Nawab. King as well as later on Nawabs also. When the Muslims, they invaded, they converted Kshatriyas also, en masse, the lower castes also, but they never touched the judiciary. Judiciary, okay, due to Sharia, some rules were imposed upon, but these government servants, they were never touched upon because they didn't know the nitty-gritties or the fine calculations. King Todarmal of Akbar, suppose. Even if you see the land records today, revenue records, it all carries the same legacy of Todarmal. And he calculated it so nicely that you cannot deviate from that, even today, with laser-guided tools also. So anyway, we carried the seal, authorized signatory. And irony of fate is that when my company finally shifted from Gurgaon to Hyderabad, I was made as the authorized signatory for all official works and pending legal litigations, etc. So I told my family that I hate official jobs, these paperworks, but my fate has brought me into this picture once again. I became authorized signatory. So this dastkhat, those who do the dastkhat for the king, Nawab, Dhaka Nawab also, they became Dostidar. That is the meaning. That is the history. Yes, history. So my family, my grandfather, late Haridas Ghosh Dostidar, he was working in Bengal Judicial Service. So he shifted to Chinsura court. It was a divisional court. It is the divisional town of Bardhaman division, the largest division of West Bengal. So that's how my family shifted there. We are from a very successful family. None of us has ever seen a second division in matric. Dozens of us have passed, at least in matric, no, not yet. And most of them, my uncles, my father, they never saw even 99 in mathematics. It was our strength.
Even my daughters are pretty good in mathematics. The elder one especially. So you finished your My 12th I or finished my 12th at in Chinsura. I studied at Hooghly Collegiate School. 8 of us, my family, they passed from Hooghly Collegiate School. So only I was a little bit. I had many extracurricular activities, and that's why I did not opt for medicine. I had a rank in joint entrance, but pretty lower, comparatively lower. But I did not like studies that much, and I chose medicine because I saw one of my cousins or my uncle. They used to study so much that I thought, my goodness, if I have to study that much, especially seeing Gray's Anatomy book, if I finish this entire anatomy book, when shall I get the time to play football or cricket or my swimming or my badminton or so many other things, or studies or reading books? Sharadindu, who will read Sharadindu? Sharadindu was my favorite at that time. So I won't get time. So better to shift for something, opt for something. हाँ, अदर देन रीडिंग बुक्स एक और चीज़ जो था, जो बहुत फेवरेट था मेरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो घर है, घरों में, मेरे घर में सब लोग एस्टैब्लिश्ड है, ज़्यादा ही एस्टैब्लिश्ड है, एक तो पद्मश्री भी है, तो पर हमारे घर में गाने बजने का कोई ज़्यादा रिवाज नहीं था. सबको एक या दो गाने ज़्यादा ज़्यादा मालूम होते थे, मेरे जो अंकल्स वगैरह थे. तो बट मेरे जो नानीहाल है, मैटरनल साइड, वहाँ पे भजन वगैरह, भक्ति गीति, ये सब खूब होता था. एंड आई यूज़ टू लाइक दैट वेरी मच. जब भी मैं ननिहाल जाया करता था, वो मेरे मामा लोग, माई मदर, शी वॉज अ गुड सिंगर, तो ये लोग बैठ के जो शाम को गाना गाते थे ना, ठाकुर के गाने, भक्ति गीति, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट लर्न इट एट दैट टाइम. तो आई जोकिंगली से दैट आई एम द फर्स्ट ऑफ माई फैमिली who has sat on this side of harmonium, not the other side of the harmonium, not a listener. Anyway, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं बहुत सोच समझ के, मेरा एक दोस्त का, he is a very close friend of mine, he joined Vishwabharati in agriculture. So I did not join medicine, MBBS there, and I opted for Vishwabharati to study agriculture. And my family members, they were not happy at all. None accompanied me for admission, etc. And the funny thing was that I was pretty good in many games and sports. So I immediately got into Vishwabharati team, because when I went for the admission test, not a very tough test, it was okay. I easily passed that. And I saw that there was a little bit of not sports quota exactly, but they were selecting based on sports also, games also. Football was being played. So I played there, and immediately not only I was given a little bit of preference in the selection process, I was also selected in Vishwabharati football team. And before starting my classes, formal classes in Shantiniketan, I played for Vishwabharati. That is unique little thing. So because of that, I stayed in the camp, football camp. And we had a little bit of understanding about Shantiniketan. We not in a very good sense. Basically, there are a lot of misconceptions about Tagore and his Vishwabharati Shantiniketan outside. And Chinsura, in my hometown, it was no exception, because in the same Calcuttan atmosphere it was. So I stayed there, and I understood that not all things what I have heard about Vishwabharati were true. I discovered it, and later on I found out many other things. Let me point them out, because many people do not know it at all. Tagore, his Mejda, means his elder brother, Satyendranath Thakur, he was the first ICS of our country. And at that time, when Tagore was a young lad, he was also sent to Bilet or London to study barristery. At that time, all the upper class people, they used to send their kids to study either for civil services or to become a barrister. Everybody, be it Jinnah, be it Gandhi, be it Nehru, or all the other, so many other people, they all were barristers or ICS.
Tagore's brother, elder brother, he was the first ICS of this country. Still, when it came to his own son, can you imagine? He sent him, Rothindranath Thakur, he sent him to Illinois in USA, 1906, to study agriculture. Not only him, along with him went Santosh Majumdar to study animal husbandry. And later he sent his own son-in-law, Nagendranath Ganguly, to study agriculture again. So it shows that he was a visionary, and he was a century ago. Even today, not many rich people of our country, they will send their kids to study agriculture abroad. They will send for studying IT or my MBA. But he sent it 100 years back. Not only that, he invested his money, Nobel, whatever he got from Nobel, 1,20,000 rupees. He put it into for use of to be used as agricultural small loans, small finance for poor peasants of East Bengal. Patishar, Such Shajadpur. a big visionary he was. He was a visionary. He was a visionary. That's why Dr. Moni Roy, old friend of mine, a writer, doctor of Delhi, he used to say that Tagore never went to study formal education, but based on his own works, he was the first Nobel laureate of Asia, and based on his works and his vision, two other people got Nobel Prizes. One was Amartya Sen, his education system, informal education system, etc., and Muhammad Yunus, who got a Nobel for small finance. It was based on Tagore's works. Anyway, so I went there, Vishwabharati, Shantiniketan, then I understood that this is my place, the nature, the music, or this thing, agriculture, because we were called as Rothi Thakur's successors, or Manos Putro, Rabindranather Manos Putro. So whenever we had any argument with others, I used to say that Tagore wrote songs for you, but we are his Manos Putro. Yes. So anyway, I did many things. Vishwabharati, there, football, cricket. I used to be the opener for Vishwabharati, and many times I scored the highest run for our university. We won the first matches. Vishwabharati used to lose all the matches. They used to buy the return tickets before going for any intervarsity game. It changed after we joined there. Anyway, so you and feel I found very my proud to tell yeah. people what you have done during your studies. Oh yeah, I did a little bit of studies. Okay, just to pass, that was enough to pass those exams. But I did many all other things, whatever to my heart's content, whatever I liked, be it plays, be it games, be it music. I sang there. Even I sang ghazal over there. At the time I was very fond of ghazals, because in Chinsura, when we were young, Chupke Chupke Raat Din, etc., it was a craze. So I used to like ghazals very much. And in one of those contests, when I won one ghazal singing competition in Shantiniketan, Mohanda's wife, I was very fond of Mohan Singh Khangura. His wife suggested me, why don't you take tuitions from him? You will become much better. But I didn't have time at that time. Anyway, I didn't have time because I found my lady love also at that time, Shutapa. She was studying economics in Vidya Bhavan. I was studying agriculture. So then after 4 years, she went on to finish her masters over there. I went to Pantnagar, the leading, at that time, the premier agricultural university of India. And surprisingly, it was the first agricultural university founded in India in collaboration with Illinois, where Tagore sent his son-in-law, and Santosh Majumdar. So same Illinois later on, and when we went there, Pantnagar, for the first time, we were greeted by a huge hoarding sort of. In one of the gates, it is written very proudly and loudly, हरित क्रांति के जन्म स्थल में आपका स्वागत है. और मेरे डिपार्टमेंट में it was written loudly again, हरित क्रांति के जन्म स्थल डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है. Means my department had developed those varieties which had brought green revolution to India. So anyway,
So then I was given a choice for my crop. I chose mustard because of one small, very small incident. Vishwabharati, in our agriculture course, we had one course called as village field work. Tagore's vision was that his students, Vishwabharati students, they not only will learn, not only will study only, they have to learn the living, or they it in association with the surroundings, with neighboring villages, their lives. Means they have to become a complete man, not only a studious professional or working man. So, because of that village field work, we had to go to surrounding villages, study their lives, their professions, their earnings, etc. There, I saw one very poor lady. She was waiting for mustard crop to be threshed. Why? She will take all those leftover residues to be used as her fuel. Oh. So Generally, they are eaten by the cows or no, the no, buffaloes. the No. mustard straw, etc. They are not eaten by cows. You can feed them. It's very pretty rich in calcium if you feed cows, but it needs to be chopped. It has to be mixed with other food, etc. But mustard residues are usually used as fuel. So that lady was so poor; she was waiting for those things as to be used as fuel for her family. So I when I chose mustard, I don't know why that picture came to my mind. I said, no, I don't need wheat. I was given a preference. Which crop do you want? Do you wish to work on? I said mustard. So the love affair with mustard started. Then, based on my thesis work, I was picked up by ProAgro to work on this transgenic mustard project. I continued. After that, when the project was called off, I was given plum positions, a very plum position. I was offered to be shifted to marketing. I said no, I shall work with mustard. I worked in other department. I had 40 guys working, reporting to me. Hell of a job, basically. It was called as manager product placement. सो एक्चुअली जो हम काम कर रहे थे, जीएम मस्टर्ड का भी था, वो हाइब्रिड डेवलप करने के लिए मस्टर्ड में, क्योंकि मस्टर्ड में उस समय तक कोई हाइब्रिड नहीं था इंडिया में. तो देन वी फाउंड आउट अदर वेज टू डेवलप ए हाइब्रिड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स. तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा था फ्रांस के एक यूनिवर्सिटी के वजह से. तो देन आई स्टेड बैक. And finally, at that time, my company was doing exceedingly well, Bayer at that time. It was doing very well in Canada, and we had a fantastic business over there. And we started working in other regions also, other continents like Europe or Australia. India was always there. So I was there in the global team, worked in Canada also, Belgium also, Australia a little bit, not much. I was focused on mustard. And later on, I became successful. विदेश में भी क्या mustard की यूज होती है वहाँ कैनोला ज़्यादा? का नाम तो आपने सुना Canola, होगा. हाँ. Canola rapeseed. In Europe they call it as rapeseed. In Canada and US they call it as canola. In Australia also. Almost similar. They are sister crops, we call. In Canada, what happened was that they in mustard, all vegetable oils are combinations of different fatty acids. So some fatty acids are very good, some are not so good, some are bad. Palm oil has one very bad fatty acid. I must tell you that India is almost self-sufficient in almost all food crops, all food. But we are grossly deficient in edible oil, vegetable oil. We have to import almost 60% of our requirement, and it is growing because Indian population is increasing and we are consuming much more oil. What happens is that whenever a poor guy becomes a little more affluent, he starts eating fried food, more French fries. They're the largest consumed food in the world, French fries. Or he goes for other fried or non-veg items, simple without eating simple dal chawal. So that's why the consumption goes up. And cake, all these bakery items, pastries, they need a lot of edible oil also and fats. So India spends a lot of money on importing this oil, and that too we are importing a very bad oil, palm oil.
It's not good for to be consumed. Anyway, but in Canada, they developed one canola oil, which is good in its fatty acid composition, and its meal is also pretty good. They have lowered down one substance called as glucosinolates, which is very good to be used as animal feed. So I am trying to develop that, and probably I shall be the first one in India to develop commercial grade canola mustard. So yeah, I went on to work for 25 years. Later on, what happened was that Bayer purchased one of our competitors, Monsanto, and then lots of problems were there, and it had to sell off its business. And I joined one Indian business. They sold off also. Global canola crop they have sold off to BASF. In India, they sold it off to another company, but I opted out. I preferred to join one old Indian company, traditional, Namdhari Seeds. So now I am working there and doing well. Okay. My developed products, they cover almost 1 million acres in India every year. Farmers of 1 million acre, they grow my products. In West Bengal, yeah, I fought with my company guys to work for early segment also. Early segment means the mustard crop which is grown in eastern India, primarily to serve my own state. So, and I'm proud that in West Bengal 3 hybrids are notified. All 3 of them are mine. So, then in Bangladesh also my company launched one product, and when I went to see that, then I said everyone has one ring to his motherland. In a way, East Bengal is basically my motherland, Borishal. So I said, I tried, probably whatever rin I did have. ऋण जो कहते हैं ऋण ऋण चुका दिया, उधार चुका दिया. तो anyway, that's the journey. एक प्रश्न करती हूँ आपसे, ये जो आपके मन में जो भावना है कि हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, उसके बाद आप पंतनगर गए, वहाँ से आप बाहर भी गए, इतने सारे अच्छे कंपनीज में आप अभी नाउ योर रिसर्च इज ऑन कैनोला ऑयल मस्टर्ड, ठीक है, कैनोला क्वालिटी मस्टर्ड ऑयल, कैनोला क्वालिटी मस्टर्ड ऑयल. तो इसमें जो अभी आपका जो फोकस है, ये आप भी ऑलमोस्ट यू विल बी एबल टू डू इट, ये आप बिल्कुल ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा. ये जो मदरलैंड के साथ आप जुड़े हुए हो, तो हमारा देखो ये जो फार्मिंग, ये जो लैंड, माटी, भूमि, ये सबसे जो हमारा कनेक्शन होता है, तो हर एक जो बड़े बड़े हमारे सनातन धर्म के जो बड़े बड़े आध्यात्मिक जो फील्ड में जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, जो बड़े बड़े महापुरुष आए इस धरती पर, वो भी तो अपना कनेक्शन बना के रखा अपनी भूमि से, माटी से. तो वहाँ आपके साथ ऐसा कुछ कभी कोई अनुभूति हुई है जो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि वाई यू लव योर माटी सो मच, वाई यू वांट टू बी कनेक्टेड विथ इंडिया सो मच. काफ़ी आपको स्कोप मिला बाहर जाने के लिए. आप यू वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ऑफ कोर्स इन जर्मनी, बट यू केम बैक. हर एक का लाइफ का एक दो होते हैं जिनको ध्रुवो तारा बोलते हैं हम लोग, आवर लाइट हाउसेस इन द लाइफ. टेगोर इज वन ऑफ दोज लाइट हाउसेस इन माई लाइफ. आपने देखा होगा टेगोर के, आपने तो पढ़े हैं, उनके गाने सुने हैं. उनके जो गाने हैं मैक्सिमम आप देखना, उनका जो एक थिंकिंग था कि मेरे इतने जो क्रिएशंस है उसमें माई सॉन्ग्स विल लास्ट फॉर एवर. उनको मालूम था कि बंगालीज़ की हिम्मत नहीं है कि मेरे सॉन्ग्स जैसा कोई दूसरा कुछ बना के निकाल दे. बहुत कम लोगों में वो हिम्मत है. तो अब प्लस बाकी चीज़ों का क्या है, उनके नरेशन बदल जाते हैं, बट जो पोएम्स है, क्लासिकल पोएम्स या सॉन्ग्स है, दे लास्ट फॉर 1000 years. तो अभी टेगोर की ये जो जितने क्रिएशंस है, जितना उनका एक्सप्लेनेशंस है, गाने हैं, या तो ईस्ट बंगाल की बादल रेनी सीजन का है, या विश्व भारती, शांति निकेतन, वर्षा के धुन के बहुत सारे वर्षा ऋतु के ऊपर बहुत ज़्यादा है, 116. और 96 उसके बाद है शांति निकेतन में जो वसंत उन्होंने देखा, स्प्रिंग फेस्टिवल. बट कहीं पे आपको, ही ऑल्सो स्टेड इन लंदन, शुरुआत के स्कॉट सिस्टर्स उनसे सीखे हैं.
कहीं पे कभी भी, ये शायद मुज्तबा अली ने नोट किया था, एक बार भी वो स्नोफॉल का कोई डिस्क्रिप्शन कहीं पे दिया नहीं। बरसात हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन दिया, विविड डिस्क्रिप्शन। वसंत के तो बहुत गुण गाए, स्नोफॉल का क्यों नहीं दिया? वो भी तो एक चमत्कार है नेचर का। इसका मतलब है बाय हार्ट ही वॉज अ ट्रू जेन्युइन बंगाली इंडियन। ठीक है, चाहे वो नेशन की जो ये डेफिनेशन उसको नकार रखा हो उन्होंने, ही वांटेड टू बी ए विश्व नागरिक, बट इन सेंस, इन हिज ट्रू सेंसेस ही वॉज ए जेन्युइन बंगाली। मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, इट वॉज ए मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट, Proagro PGS. PGS was a Belgian company, and PGS started operations in Canada, where we got the first deregulation. जो ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट उनको डीरेगुलेशन मिला था कनाडा में 96, एंड आई वेंट देयर इन 94. आई वर्क देयर। तो फर्स्ट टाइम मेरे को नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट में चढ़ने से पहले आई बोर्डेड एन इंटरनेशनल फ्लाइट, ज्वाइन किया। विद इन 4-5 months आवर ग्लोबल बॉस ही केम, he saw my work. It was earlier, it was quite dilly-dallying was there, lopsided. And when I joined, I brought in some changes probably. He talked to me. He told me, what are you going to do in this summer? I said, probably I take mustard to, we shall take it to the hills, grow it. No, you come to Canada. We shall train you. So that's why I stayed back also. Because जो training मुझे उस समय मिला हुआ था, वो इंडिया में किसी के पास नहीं था। So I thought that जब मेरे को ये जानकारी है, why not to deliver it for proper reason, for proper cause. दूसरे मार्केटिंग में चला जाऊंगा, जॉब तो मिलेगा, सैलरीज विल इंक्रीज डेफिनेटली, फैसिलिटीज विल इंक्रीज, बट ये जो जानकारी मेरे पास है, क्यों ना इस देश को हैंड ओवर करें। तो कभी कमी तो महसूस नहीं हुई कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ? बहुत आपके फ्रेंड्स होंगे जो बाहर सेटल्ड हैं। था, और इस बात पे मैं आ रहा हूँ, तो मैं वहाँ गया। अभी जैसे उस समय क्या था, लुफ्तांसा का फ्लाइट था, और मज़ेदार बात है, जिस फ्लाइट से मैं बाहर गया था फर्स्ट टाइम, मेरी माई एल्डर डॉटर, शी इज़ डूइंग हर PhD इन पोलैंड नाउ, उसका भी फर्स्ट फ्लाइट लाइफ का इंटरनेशनल फ्लाइट वही था, LH759। तो एनीवे, जब मैं गया, वो सामने एक बड़ा सा स्क्रीन में दिखा रहा था कि अब नाउ योर फ्लाइट हैज़ टेकन ऑफ, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स काबुल। द मोमेंट इट शोड that you have crossed Indian border, I started feeling a pain. और मॉर्निंग में जब मैंने लैंड किया फ्रैंकफर्ट में, मेरे को लगा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तब मैं समझ गया कि आई कैन नॉट स्टे देयर, एंड आई एम ए जेन्युइन इंडियन, दाल भात वाला। तो मुझे कई लोगों ने टीज़ किया बाद में, कनाडा में आई स्टेड वेल, मुझे अच्छी तरह से रखा गया, फर्निश्ड सर्विस अपार्टमेंट था, बहुत लोग बहुत मतलब प्यार करते थे, और दे वर सैंग्विन कि आई शैल गो बैक एंड आई शैल जॉइन देयर, आई शैल वर्क देयर। बट मैं रीजंस देता रहा कि नहीं यहाँ पे ऐसा है वैसा है। वन ऑफ द रीजंस वाज येस, आई हैड टू मैरी, बिकॉज मैंने उनको वादा किया था, आई शैल नीड ओनली 2 years फॉर गेटिंग मैरिड। Sutapa was also of my age, so I had to marry early. That was one of the reasons why I did not go for PhD and opted for the job. बाद में भी जब भी मैं गया, they were very nice to me, बट मेरे को कभी लगा नहीं कि ये दिस कैन बी माई कंट्री। चाहे मेरे कंट्री में कितना ही बुराइयाँ हों, वो अपना देश है, अपना माँ है। जैसे अभी मैं मतलब घर कभी जाता हूँ चिंसूरा, द मोमेंट आई लैंड एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेरे को लगता है कि सुकून आ गया, मतलब ये मेरा घर है। तो दिस इज़ योर इमोशनल बॉन्डिंग, अपने घर से अपने अटैचमेंट। तो अभी जैसे एक और चीज़ सरप्राइजिंग, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट है, उस समय मुझे, मैं जब जाता था बाहर से, जितना डिफरेंस हमारा नज़र आता था हमारे कंट्री का, अब वो काफ़ी कम हो चुका, कम हो रहा है, बहुत कम, अभी कम हो चुका है। एंड अभी तो मेरी डॉटर को भी ये महसूस हो गया, यकीन हो गया उसको कि हम लोग अभी आगे निकल गए। कैसे? ये जो UPI डिजिटल पेमेंट्स अभी आप कर रहे हैं, पेटीएम, फ़ोन पे, अभी ये जर्मनी में या पोलैंड वाले तो समझ, उनके तो सोचने से बाहर है, वो अभी भी कैश में लटके हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से तो हम लोग, और ब्लिंकिट जब ये बोलती है मेरी बेटी कि ब्लिंकिट में विद इन अ ब्लिंक आपका सामान घर में आ जाता है, वो लोग तो हैरान हो जाता है कि ये सर्विस कहाँ मिलता है। और प्लस क्या है, ये जो सर्विस है, आपको एक शॉफर मिल जाता है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव,
आपको घर में हेल्प करने के लिए कोई आ जाता है, वो मैंने देखा कि वो बाहर नहीं है। प्लस मैं तो कनाडा में शुरू में जाके आई हैड टू वर्क इन द फील्ड ऑल्सो, इन द फील्ड्स। काफ़ी हेवी मशीनरीज है, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, आदमी उनके पास है नहीं। तो मैं जिन लोगों के साथ काम करता था, एक बिल करके लड़का था, बिल डेल, तो एक दिन मैंने देखा, उस समय मोबाइल फ़ोन, वो लोग बोलते थे सेल फोन, या तो उसमें फ़ोन कर रहा है कि शाम को मैं आ जाऊं, मैं इतने बजे आ जाऊंगा, आई शैल कुक माई ओन डिनर। तो मैंने पूछा किसको फ़ोन कर रहे हो? बोला मदर को। मदर क्या मिलने जाओगे? हम कहते हैं हाँ, आई टूक एन अपॉइंटमेंट। बोला फिर डिनर बनाओगे? मदर नहीं बनाएगी? कहते ना, उनका बन चुका था। हम लोगों का ऐसा है कि चाहे मदर 15 साल की उम्र हो गया तो घर से निकल जाओ, यू बी ऑन योर ओन, और अगर मिलने आना है तो पहले से बता दो, और लंच डिनर अगर उनका नहीं बना है तो आपको जाके हेल्प करना पड़ेगा। और मैंने बोला अगर बिना बताए चले गए तो? कहते यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। मैंने बोला कमाल है, दिस इज समथिंग आई कैनॉट डाइजेस्ट, नो माई किड्स वोंट, दे वोंट लिव हेयर, नो। प्लस एक और चीज़ था सो फुलिश ऑफ माइंड, जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, इट वॉज अ नाइस अपार्टमेंट, तो वहाँ सुबह कोई मुझे पिकअप करते थे गाड़ी से ऑफिस के लिए। तो मैं जैसे ही उतरता था, रोज़ एक बूढ़ी ग्रैनी मिलती थी, तो खड़े हैं बहुत सज धज के। तो वहाँ कनाडा में स्पेशली इन दैट टाउन सस्कैटून, पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, या अगर आपने हिट कर दिया किसी को तो आपका लाइसेंस गया फॉर एवर। तो वो एक बाजार होता है, तो वो पुश करने से आपका रेड लाइट आ जाएगा, यू कैन क्रॉस। तो मैं जाके देखता था कि उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं पुश करता था उनको। 2-3 दिन मैं उनको एस्कॉर्ट करके ले गया उस तरफ। मेरे को भी बोलने के लिए कोई आदमी होता था, चाहिए था। तो शी यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी विथ मी। तो वो खड़े रहते थे कि कब मैं आऊँ और उनके साथ क्रॉस करूँगा, फिर मैं गाड़ी में चढ़ के चला जाऊँगा उनको बाय बाय करके। नहीं, एक दिन तो वो बोला कि आई एम सो हैप्पी विथ यू। हमारे यहाँ तो एज, ओल्ड एज मतलब आप घर से बाहर हो गए, कभी कभार कोई आपको फ़ोन करके मिलने आएगा, वो भी ग्रैंड किड्स आर मोर क्लोज। तो आप जैसे कोई यंग लड़का, मैं तो उस समय यंग ही था 25 साल का लड़का, 23-24 साल का, वो हमें अटेंशन दे रहा है, हम मेरे लिए खड़े हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे से एक दिन रहा नहीं गया, मैंने पूछा ग्रैनी आप, उनको मैं ग्रैनी बोलता था, आपका एज कितना होगा? कहते 80+। बोला आप इतना स्ट्रांग मेकअप क्यों करते हैं? कहता है, चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला नेवर टेल दिस थिंग टू एनी अदर ओल्ड लेडी, शी विल स्लैप यू। क्योंकि हमारे यहाँ पे यू आर नेवर ओल्ड, आप अपने आप को ओल्ड डिक्लेयर कर दिया तो देन यू आर डेड, एज गुड एज डेड। सो आई हैव टू वेयर माई मेकअप्स, पुट अप माई लिपस्टिक एट्सेट्रा, दिस इज आवर लाइफ। तो मैंने बोला बाप रे। कहते तुम्हारे वहाँ कैसा है? मैंने बोला नहीं, हमारे वहाँ तो वाइट, आपको बाल काले करने की ज़रूरत नहीं होता है, ग्रे हेयर इज़ एक्सेप्टेड एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ विजडम इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ पे लिपस्टिक कोई लेडी, ओल्ड लेडी नहीं लगाते हैं, और उनको तो घर में प्यार, लाड प्यार से रखा जाता है एजेड लोगों को, और उनसे, उनकी बातों से ही चलते हैं, एक्सेप्शंस छोड़ के, मोस्टली ऐसा है। तो ग्रैनी ने बोला था काश हम वहाँ पैदा हुए होते। तो उस दिन मैं समझ गया आई शैल नेवर स्टे अब्रॉड। पैसे कमाने के लिए ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए, और बाकी लोगों का जो मेंटेलिटी अलग है तो बात अलग है। बट वहाँ पे टिल योर ब्लड इज़ वार्म, एज बाकी लोग, कुछ लोग कहते थे, वहाँ पे बहुत लोगों से मेरी जानकारी हो गई, eminent professionals there, doctors, professors. I got a chance to do my PhD under the most famous person in canola breeding, Dr. Downey and Rakau. Anyway, I could not do that. But वो वहाँ जो Indians थे वो बोलते थे कि till your blood is warm and your muscles are strong, you are welcome in North America. After that, you are left to die on your own. Yes, the social security is there, provided you are able to reap it properly. This is the life. और एक और चीज़ था जो मैं देखता हूँ, सस्कैटून यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, तो मैं जाता ही रहता हूँ।
तो पहले वहाँ पे हमारे जो टॉप स्टूडेंट्स होते थे वो वहाँ जाया करते थे नॉर्थ अमेरिका में। अब वहाँ पे जाते मीडियोकर स्टूडेंट्स, माँ बाप के पैसे से। जो टॉप स्टूडेंट्स है वो नहीं जा रहे आजकल, उनको इंडिया में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, तो वाई शुड दे गो। ये काफ़ी मतलब अगर आप देखो, सोचो या रिसर्च करो अपने आप पे, तो इंडिया तो बहुत बहुत आगे है, बहुत आगे है, क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ जो है, हमारे एक तरफ हम कहते हैं कि दिस इज पॉपुलेशन, एंड दैट पॉपुलेशन इज आवर स्ट्रेंथ, बिकॉज ये जो आप फार्मिंग में, कहाँ है फार्मर्स? हमारे मिडिल क्लास से तो कोई फार्मर बनेगा नहीं, कोई कृषि का काम तो करेगा नहीं। मालूम नहीं है सुनेत्रा जी, आई जस्ट रेड वन डेटा यस्टरडे, इन दिस लास्ट 10 years 56 लाख लोग वो शहर छोड़ के चले गए गांव में, दोबारा फार्मिंग में इन्वॉल्व होने। कोविड में ही समझ में आ गया कि नॉट ऑल थिंग्स आर हंकी डोरी। और अभी बेंगलोर का हालत देखो ना, पानी खत्म हो गया, इट्स हॉटर नाउ। 94 में जब हम जाते थे बेंगलोर, किसी के घरों में पंखे नहीं होते थे, अब वहाँ लोगों एयर कंडीशनिंग से उनका हालत, और पानी तो खत्म हो गया क्योंकि लेक सारे खत्म हो रहा है। गांव में कम से कम वेदर तो बेटर है, मतलब pollution कम है। Many people I even know that they have gone back to the even IITians they are starting agri ventures, क्योंकि एग्रीप्रेन्योर्स हो रहे हैं वो, एग्रीप्रेन्योर्स। क्यों? देखो पहले हमारे यहाँ पे क्या था, आप आटे खुले में खरीदते थे, अब ब्रांडिंग हो रहा है तो चीज़ों के प्लस वैल्यू एडिशन हो रहा है। पहले आप सिर्फ लोगों के आटा आप रोटी खाते थे, अब जैसे मान लो आज मॉर्निंग में मैं नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स खा के आया, तो ये जो आपका वैल्यू एडिशंस हो रहा है, यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स नाउ, हु विल मैन्युफैक्चर देम, हु विल ऐड वैल्यूज। तो यहाँ पे बहुत सारे जो एडुकेटेड यूथ है, मैं तो आपके चैनल के जरिए, मैं जो बच्चे हैं दे आर कन्फ्यूज, हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ये मैं बोल सकता हूँ कि जो प्राइमरी जो सेक्टर्स है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर है, या अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आईटी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो आपको आईटी किस, वो खुद बना लेंगे आगे सॉफ्टवेयर्स, आपकी क्या ज़रूरत है। एंड देयर आर ऑलवेज वेव्स, ये भी मैं देखता था वहाँ जाके, वहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी का वेव्स आते हैं। जो लोग मान लीजिए एक्स सिस्टम में कारगर है, कामयाब है, जब वाई आ गया तो दे बिकेम यूजलेस। बहुत कम लोग होते हैं जो वेव्स के साथ साथ चल सकते हैं। बट जैसे मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इट्स अ मदर सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग वो रहेगा, मकान आपको बनाना पड़ेगा, उनको ज़रूरत पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा। उसी तरह एग्रीकल्चर जैसे है, अभी आप चाहे कुछ हो ना हो, कोविड के टाइम में आपने देख लिया, वही खाने के लिए सबको तरसना पड़ेगा। प्लस अभी क्या है कि अभी कई सारी चीज़ें हैं जो आप एग्रीकल्चर के जरिए कर सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेट्रोलियम आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, 17 लाख करोड़ का आपका ड्रेन हो जाता है फॉरेक्स टू जस्ट टू इम्पोर्ट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपके पास है नहीं और ग्लोबली वो ख़त्म होते जा रहा है, फिर क्या करोगे, गाड़ी कैसे चलाओगे। अभी उसका ऑलरेडी इंडिया में यूज़ निकल गया कि यू आर ब्लेंडिंग 20%, द टारगेट इज़ टू ब्लेंड 20% इथानॉल इन पेट्रोल। उतना हमारे पास इथानॉल ही नहीं है। क्यों? इथानॉल आप बनाओगे एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज से या फूड से, ना आपके पास उतना गन्ने है, ना उतना मक्का है, ना उतना चावल से तो आप बना ही नहीं सकते, चावल उतना आपको बहुत, उसके लिए पानी खर्चा है। तो ये जो टारगेट है, बायोडीजल मिलाने का टारगेट है, मतलब डीजल में बायोडीजल मिलाने का। बायोडीजल क्या है, आपके जो यूज्ड एडिबल ऑयल है उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो बायोडीजल में, बट आपके पास उतना है ही नहीं, खाने के लिए ही नहीं है, तो बनाने के लिए, बायोडीजल बनाने के लिए तो दूर की बात है। तो स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है। अब मान लो लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर का तो जीडीपी में शेयर इतना कम है। अरे तुम्हारा सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, उसका धागा कहाँ से आता है? कॉटन से। तो कॉटन तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको आप कन्वर्ट करते हो, देन इट बिकम्स इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग रॉ आइटम। तो ये रॉ आइटम भी तो सप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा एग्रीकल्चर का। तो इसी तरह मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। अभी जो ये बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं आईआईटी के, उसके, उन लोगों ने देख लिया कि नॉर्मल जॉब में मेरा ये प्रेशर है, रात को 12 बजे तक हम सॉफ्टवेयर में लगे हैं, दिस इज़ नो लाइफ। कोविड ने सिखा दिया, दिस इज़ अ फैंटास्टिक थिंग कोविड हैज़ डन टू अस। उससे अच्छा तो हम एग्रीप्रेन्योर्स बने, नेचर के साथ रहे, नेचर के काम के अंदर रहे, यू विल लिव ए मच मोर पीसफुल लाइफ।
प्लस यू आर अर्निंग. मैं जानता हूँ किसी एक लड़का को, रेड्डी, मेरा कोलीग था, पोची रेड्डी उसका भाई. ही वॉज बिग शॉट इन यूएस सॉफ्टवेयर में. तो एक बार इंडिया में आया हुआ था, दिल्ली में घूमने आया, देखा दिल्ली में आलू का जो प्राइस है और हैदराबाद में जो आलू का प्राइस है उसमें बहुत डिफरेंस है. ही वॉज अ रेड्डी, वो बिजनेस उनके ब्लड में है. उसने बीच में होशंगाबाद में वेयर हाउस ले लिया, दिल्ली से पोटैटो ले जाके वहाँ स्टोर किया और हायर प्राइस में हैदराबाद में बेच दिया. ही अर्न 50 lakhs इन ए सिंगल सीजन. उसके बाद वो यूएस का जॉब छोड़ दिया, वो यहाँ आके एग्रीप्रेन्योर बन गया. Many people I know, they have, they are doing nowadays blueberries, strawberries, ये सब बहुत ज़्यादा उत्पादन हमारे देश में ही हो रहा है. और ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो बहुत चलन हो गया है, बहुत है अभी. हालांकि वो थोड़ा सा डिबेटेबल है क्योंकि उसमें यील्ड वगैरह कम हो जाता है ना. तो फर्स्ट थिंग हम लोगों का क्या है कि अभी सब लोगों के लिए उतना फूड है नहीं. अब क्या है, अगर आप देखो तो चावल का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो गेहूं का घट जाएगा क्योंकि आपका लैंड लिमिटेड है. और लैंड भी आपका दिन ब दिन आप ख़राब कर रहे हो क्योंकि आपका जो एक हाईवे निकाला तो एग्रीकल्चरल लैंड चला गया ना उसमें काफ़ी. तो आपका लैंड कम होते जा रहा है, पानी आपके पास घटते जा रहा है और ख़राब होते जा रहा है. अगर आप आगरा कैनल चले जाएं जिससे कि आपका इरिगेशन होता है, उसका स्मेल से आप मर जाओगे. मतलब उसके कोई आदमी अगर उसमें गिर गया स्मेल से ही मर जाएगा. तो उसी पानी से आपका उगाया हुआ फसल का खा रहे हो. वो मूली देख के आपको लग रहा है बहुत टेस्टी मूली होगा, बट यू नेवर नो कि उसके अंदर क्या क्या है क्योंकि इट्स ऑल ग्रोन विद द हेल्प ऑफ दैट डर्टी वाटर. तो इसीलिए स्कोप और होना चाहिए, इसको प्रमोट भी करना चाहिए. साथ में हेल्दी लाइफ एंड एग्रीकल्चर का एक एडवांटेज है कि यू आर एसोसिएटेड विथ नेचर. तो आपको काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग भी मिलता है साथ में. सो आई कम टू यू. मेरे शो के सबसे लास्ट और अहम जो प्रश्न होता है हमेशा सबके साथ, जानना चाहूँगी स्पिरिचुअल एक सबके अलग अलग टाइम से शुरू हो जाता है जर्नी. हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हम बातचीत करते हैं वहाँ आपको ये हम पूछेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कब शुरू हुआ, या आपके करियर के टाइम शुरू हुआ. प्रोफेशनल में तो आप काफ़ी बिजी रहे, बहुत सारे देश में घूमे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अपने देश को भी दिया. अभी भी दे रहे हैं आप. बहुत कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, रिसर्च आपका चल ही रहा है. तो व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी? Like all other, most of the Bengalis, I was also introduced to Marxist philosophies at a very early age. तो उस समय एक फैशन टाइप का था, वो अभी भी है, कई लोगों में है. We are atheists, we don't believe in those religious affairs etc. तो थोड़े बहुत वो भी हम में भी आया था. तो उस वजह से शायद ये हुआ कि मुझे बहुत ह्यूज, मतलब एलाबोरेट जो आपका आचार जिसको बोलते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसमें उतना बिलीफ है नहीं. बट आई हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. उसी को आप ईश्वर बोलो, कुछ भी बोलो, इस जगत में सब आपके हाथ में है नहीं. एथेइस्ट टिल एवरीथिंग इज इन हिज फेवर. जिस दिन उसका मतलब पाशा पलट गया उस दिन वो उसको घुटना टेकना पड़ता है, भगवान बचा लो. इसीलिए ऑल द हॉस्पिटल्स, वट एवर हॉस्पिटल्स आई हैव सीन इन लाइफ, बी इट अब्रॉड, बी इट वेलोर और अपोलो, हर जगह पे कोई ना कोई रिलीजियस प्रार्थना का कोई ना कोई जगह होता है. एक मंदिर तो बना हुआ है, मंदिर हो या लोग इबादत करते हैं या चैपल्स है, जैसे वेलोर में मैंने देखा. क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जब आपके जब वो आपका बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है ना, तो वही बचा लो, चाहे भगवान हो चाहे कोई. जाके हमें हमारा रास्ता वहीं खत्म हो तो जाता है. ये स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेज है, ये अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए. उसके बाद आप जब सोचते हो कि ये पृथ्वी क्या है, कैसे ये गैलेक्सी है, उसके बाहर क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, सब कैसे चल रहे हैं. इवन जो लोग बोलते हैं ना, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, वी डोंट बिलीव इन गॉड, बहुत लोग तो उनको एक सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल जो फिजिक्स का क्वेश्चन है. आपको मालूम है जो कोई सा भी चीज़ जब उसको आप हीट करोगे वो एक्सपैंड करेगा, ठंडा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट.
पानी को भी आप ठंडा करोगे तो आइस बन जाता है, आइस स्प्रेड कर जाता है, उल्टा हो जाता है, छोटा नहीं होता है पानी से, इसीलिए आइस फ्लोट करता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी सबसे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, सबसे सॉलिड उसमें आ जाता है, उसके बाद वो एक्सपैंड करता है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सपेंशन। ये अगर ना होता ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे बर्फ़ क्या नीचे से फॉर्म हो जाता, पानी ऊपर होता, नीचे बर्फ़ हो जाता, तो उससे क्या होता है, जो भी मछली है एक्वा लाइफ खत्म हो जाते। किसने बनाया ये रूल, क्यों ब्रेक किया ये जियोग्राफी फिजिक्स का सिंपल रूल, ताकि वो जो पानी में जो लोग रहते हैं वो भी सर्वाइव करें। एंड लाइफ स्टार्टेड इन फ्रॉम वाटर। ये किसने किया, क्यों किया, कोई तो है जो फिजिक्स साइंस के बाहर है। दैट्स वाई पीपल से वेयर साइंस एंड्स फिलोसॉफी स्टार्ट्स। तो ये जब आपको समझ में आ जाता है तब ये जो एथेइस्ट वगैरह है इनको आप यू डोंट केयर फॉर देम। बट येस, आई डोंट बिलीव इन 4 घंटा 5 घंटा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन शेयर ए वेरी स्मॉल स्टोरी विथ यू। हाँ, तो एक जो कहावत है वो मुझे काफ़ी बचपन में ही काफ़ी मेरे को अच्छा लगता था कि भ्रूमध्य नारायण जार मंदिरेते कीबा काम तार। मतलब जिनके हृदय में भगवान हों, बसे हों, उनको माला जपने का या ज़्यादा देर तक पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। खैर ये तो बड़ी बात हो गई, वो सबके दिल में नहीं होता है ऐसे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का भी जरूरत पड़ता है। रिचुअल्स भी तो रिचुअल्स भी मायने रखता है। इनिशियल में लोग अगर रिचुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भगवान के ऊपर वो उनका कोई आस्था माला भी तो जपने नहीं से आएगा। धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये तो बिल्कुल, बाद में हाँ। समझ में आता है। तो बट एक स्टोरी जो मैंने पढ़ा था, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो उससे भी काफ़ी मेरे को ये मेरा जो रिलीजियस स्पिरिचुअल थिंकिंग है, इट गॉट शेप्ड बेस्ड ऑन दैट स्टोरी। ठाकुर ने बोला, रामकृष्ण देव ने कई जगह पे बोला ये कि एक बार विष्णु के पास नारद जी आए कि भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो विष्णु ने बोला फलाना गांव का वो एक किसान है। वो कहते वो कैसे, मैं तो हमेशा विष्णु विष्णु नारायण नारायण करता रहता हूँ। कहते जाके देख के आओ। तो नारद जी चले गए, सुख में शरीर से उसको कोई देख नहीं पाता है। तो देखा कि वो सुबह जब अपना हल लेके निकल रहा है, गाय और हाल, उस समय उसने बोला नारायण नारायण बोल के पूरे दिन हल जोतता रहा। फिर शाम को आए, फिर हल जब उतर के रखा तो उसने बोला नारायण नारायण बोल के वो खाना खा के रोटी खा के सो गया। तो नारद जी वापस आए विष्णु के पास, बोले ये कैसा भक्त है आपका, दिन में सिर्फ 2 बार नारायण नारायण किया और मुझे देखिए मैं दिन भर आपका नारायण नारायण कर रहा हूँ। तो बोला, विष्णु ने बोला फिर मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, ये कटोरा भरा हुआ तेल है, इसको लेके पूरा वैकुंठ के चारों तरफ एक चक्कर लगा के आइए। हम याद रखना एक बूंद तेल टपकना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने वैसे ही किया। तो जब वापस आए बोला प्रभु एक बूंद तेल मैंने टपकने नहीं दिया। विष्णु ने बोला अच्छी बात है, मेरे को कितने दफ़ा याद किया। बोले वो तो आपने बोला नहीं था आपको याद कर, वो तो मैं भूल गया, मेरा ध्यान इसी पे था। बोला देखो तुम्हारे पास दिन भर कोई काम नहीं है, इसलिए तुम दिन भर नारायण नारायण करते रहते हो, और उसके पास इतना काम है, मेहनत का काम, फिर भी वो टाइम निकल के, समय निकल के मुझे 2 बार कम से कम याद करता है। तो इससे मुझे ये जो लगता है कि आपको बहुत देर तक करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे ही हमारे गीता ने तो कर्म योग सिखा रखा है, विवेकानंद जी ने भी वही बोला, आप अपना काम करते रहो पूरी आपका लगन से, वही सबसे बड़ा पूजा है। हाँ, उसमें से आप अगर आप समय निकालते हो अच्छी बात है, कुछ चीज़ें अच्छे सीखना चाहिए, और डेवलपमेंट की तो कोई एंड नहीं होता है। आपको जो मालूम नहीं है प्रश्न होता है, ये प्रश्न मन में आना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्यों है, क्या करना चाहिए, अच्छी ज़िंदगी कैसे मिल सकती है, और उसका अगर प्रॉपर गुरु मिल जाए जो इनका आंसर दे सके। सारे गुरु नहीं दे सकते हैं, और सारे रिलीजियस किताब जो आपके सामने है वो शायद जवाब ना दे सके, पर उनकी खोज जारी होना ज़रूरी है। बट उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही अगेन रिचुअल्स में फंसे रहने का कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो सेवा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेवा करने से भी आपका आधा काम हो जाता है। मैं
हमारे घर में सब लोग भारत सेवाश्रम संघ से उनसे दीक्षित है, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग रामकृष्ण मिशन से है। तो मेरा भी वो है, भारत सेवाश्रम संघ मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनका सेवा में उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं है, सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं। बट मुझे उसके लिए उनसे दीक्षा लेने की ज़रूरत है, ऐसा अभी तक मेरे को लगा नहीं है। तो मेरा एक गुरुजी है जिनसे मैं आई कीप ऑन राइटिंग, सो मैं जिनको गुरु मानता हूँ, श्री शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, वो भी एक ऋत्विक है, अनुकूल ठाकुर के शिष्य हैं। उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि जब ज़रूरत पड़ेगा ज़िंदगी में, जब वक्त आएगा, आपको किसी कड़ी प्रश्न की मुकाबला करना पड़ेगा, तो जो अच्छे गुरु है, जो आपका गुरु है, वो आ जाएंगे सामने, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार है। ज़रूर आएगा, क्योंकि जब आप कितने सारे जर्नीज़ में, आपकी जो शुरुआत से, इनिशियल जर्नी से आपका लाइफ के एक बीचों बीच अभी आप खड़े हैं, यहाँ तक आपका शुभ 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 हुआ है, और गुरु भी आपको काफ़ी मिला है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो आपको पढ़ाया है, प्रोफेसर्स थे, आपके जो ऑफिस में भी आपके जो बॉसेस हैं, वो सब तो गुरु मानते ही हैं ना। हम लोग तो पिता माता से शुरू करते हैं। हमारे जो इंडियन जो कल्चर है वह घर से ही शुरू होता है। गुरु तो हमारा बचपन से ही मिला हुआ होता है, गुरु हमें मिल ही जाता है। उन्हीं गुरुओं के जो आशीर्वाद के फलस्वरूप एक इंसान अपने मुकाम पर पहुंच जाता है, फिर अपने तरक्की की ज़िंदगी वो जीता है। हमारे घर में 96 ईयर्स हो गया इस साल, काली पूजा होता है, जो मेरी बरिशाल गाभा के गांव से शुरुआत हुआ था जिसका, वो अभी भी हम चिंसुरा के मकान में करते हैं। एंड एवरी ईयर मी एंड माई फैमिली वी डू इट विथ आवर 100% आवर निष्ठा एंड डिवोशन। और मैं एक काली मंदिर से जुड़ा भी हूँ, ओह, पास में ही है। उसको जो भी है अमावस्या पूजा वगैरह पूरा हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके देख रेख, मंदिर का नित्य पूजा करते हैं। तो काली माँ का मंदिर संभालना, घर में काली माँ का जो 96 ईयर्स तक का जो प्रथा चल रहा है, उस पर हर साल जाके वो पूजा को करना, दिस इज़ नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। तो बहुत ही निष्ठावान होना होगा इसके लिए। तो काली माता के नाम से उनके, जब आपने घुमाई दिया टॉपिक को, तो मुझे एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि माँ काली का जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हमारे तुरंत याद आता है राम प्रसाद जी। माता के कई सारे कीर्तन, कई भजन बहुत लिखे हैं, उन्हें बहुत सारे लिखे हैं। उनमें एक गाना मुझे बहुत हमारे हृदय को छूता है। मैं एक लाइन गा दूं आपके लिए, आप उसको बताइए। आप तो जानते ही होंगे, इसके विश्लेषण आपसे मैं सुनूंगी। মনো রে কৃষি কাজ জানো না, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল তো সোনা, মনো রে কৃষি কাজ জানো না। आज कृषि की बात हुई है, आज फार्मिंग की बात हुई है। एक एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारे रिसर्च में जिनका टाइम वो व्यतीत करते हैं, बहुत बड़े पोजीशन में हैं, बहुत कुछ इंडिया को देना चाहते हैं। अभी भी उनका रिसर्च, ये जो सरसों की जो सीड है उससे रिलेटेड है, बहुत कुछ वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं उनसे ये लास्ट पूछती हूँ कि क्या समझ में आता है इस लाइन से आपका? वाई ही इज सेइंग, द ऑथर इज सेइंग, द राइटर इज सेइंग, द पोएट इज सेइंग कि मोनोरे कृषि काज जानो ना, एमन मानव जमीन रोइलो पतित। मतलब ये मानव जमीन जो है, ज़मीन की जो बात कर रहे हैं हम, जो इंसान का जो ज़मीन यहाँ इंसान के ज़मीन की जो बात करते हैं, वो खाली पड़ा है। अगर उसको हम सींचते, उसको हम ठीक ठाक देख रेख करते, तो वहाँ फसल रूप में सोना पैदा होता। तो ये इस लाइन से आपको क्या समझ है? एक हम लोग जब एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे शुरू में, तो हमारे एक एग्रोनॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें एक डेफिनेशन दिया था कि रामायण में जो सीता है वो एक्चुअली मानवी नहीं है, क्योंकि जनक वो हल चला रहे थे और उनको पृथ्वी से मिला संतान। तो पृथ्वी से क्या मिलता है हमें? फसल मिलता है। तो सीता एक्चुअली फसल है, ये उनका अंडरस्टैंडिंग था।
और रावण जो है इसको चोरी करके ले गया था, जो रामचंद्र वापस लेके आए। और आज सुबह ही पता चला कि बाबा ठाकुर का भी एक प्रीचिंग था जहाँ पे उन्होंने बोला कि ये अहल्या कौन है। गौतम ऋषि जो गाय पालने के लिए माहिर थे, उनके जो ज़मीन था अहल्या भूमि, उसको अहल्या भूमि हम यूज़ भी करते हैं उसको, मतलब जो बंजर ज़मीन है, तो वो ज़मीन बंजर हो गया था, उसको प्रभु राम ने जाके, श्री राम ने जाके उस बंजर को फिर से फसल उगाने के लिए उनको कारगर बनाया। तो ये एक सिंबॉलिक चीज़ हो सकता है। और चूँकि कृषि तो हमारे सभ्यता के फर्स्ट स्टेप है, उसे वहीं से शुरुआत है। इसी तरह मानव जो हम लोग, जो ज़्यादातर लोग जिनको दिखते हैं, जो दिखते हैं चारों तरफ हम लोगों में, हम लोग भी है, हम लोग भी पूरी तरह से कहाँ अपने आप को सदुपयोग कर पा रहे हैं अपना। हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान छिपा हुआ है, सबके अंदर क्षमताएं हैं। ब्रेन के कितने सेल्स हैं हम यूज़ ही नहीं करते। तो हमारे जो चिंताएं हैं, धारणाएं हैं, वो हम सिर्फ लटका के रखते हैं कि कैसे और मटेरियलिस्टिक सुख मिले, हाँ, इससे कंपटीशन, उससे दुश्मनी, और अपने प्रवृत्ति होता है, निवृत्ति का उपाय नहीं दिखता है। मतलब हमें और खाना है, और बढ़िया चीज़ खाना है, कपड़े डालना है, बट इसका भी कोई ना कोई अंत है। ज़िंदगी तो और ज़िंदगी भर नहीं चल सकता है। तो इस निवृत्ति का जो उपाय है उसको खोजने के लिए अपना जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए खोज करने की ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत है, डिस्कोर्स की ज़रूरत है। ये अगर सब लोग करें तो हर कोई भगवान जैसे बन सकता है। आपका जो लाइफ है, ठीक है, हमारे तो पहले था कि गार्हस्थ बहुत बड़ा धर्म होता है, संसार जीवन बड़ो धर्म, रामप्रसाद ने भी लिखा है, बट इससे भी बड़ा धर्म है आखिर में प्रभु के शरण में तो जाना ही है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो रिलीजियस डिस्कोर्सेस, अंडरस्टैंडिंग, सेवा, ये सब ज़रूरी है। और ये अगर सारे लोग अगर ऐसे करने लग गए, और ये सब शम दम, मतलब अपने जो मन में जो तामसिक भावनाएं हैं उसको कंट्रोल करके अगर सत्य गुण की अगर उसकी तरफ कोशिश करें तो संसार सोना बन जाए। हर कोई आदमी भगवान, सबके अंदर भगवान जागरूक हो जाए, तो आपको स्वर्ग ढूंढने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, यही पे स्वर्ग बन जाएगा। मैं तो इतना ही समझता हूँ इस गाने से। तो आज हमारे जो गेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा उनके साथ बातचीत, और हम आगे भी चाहते हैं कि वो आके हमें और भी कुछ समझाए, कृषि के बारे में बताए, हमारी इंडियन का एग्रीकल्चर कहाँ हमें अभी लेके जा रहे हैं, कितनी IITians इसके पीछे काम कर रहे हैं, कितने लोग अपने शहर की लाइफ छोड़ के चले गए हैं गांव की लाइफ में जहां जल हवा बिल्कुल प्योर मिल रहा है, वो इसके पीछे चले गए। क्योंकि अभी इंडिया में जितने हर शहर में बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं, एक और चीज़ हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे आप एक बहुत बड़ा नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, आपके पास गाड़ी है, मकान है, बट आप कर रहे हो सिर्फ आपके लिए, आपकी बीवी बच्चों के लिए। पर अगर आप गांव में जाके एक एग्रीप्रेन्योर्स बनते हैं, मछली पाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गाय पाल रहे हो, फसलें उगा रहे हो, आप अपने आप काम कर रहे हो, समाज को दे रहे हो, प्लस 10 जो गरीब है उसका भी तो भला कर रहे हो। इससे बड़ा सेवा क्या होता है? कितने लोगों को कामकाज भी तो मिल रहा है। तो ऑलवेज नीलाशीष जी का यही कहना है कि अपने जो इंडिया में, इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया में रहो, इंडिया के अंदर काम करो और इंडिया के लोगों को हेल्प करो। उनके जो कामकाज का जो तरीका है वहाँ नॉट ओनली सिर्फ अपने परिवार चलाना, अपने बाहर जाओ, बाहर जाके एडुकेशन ले लो, अच्छे स्किल्स अडॉप्ट करो, पैसा भी कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाओ, देश में वापस आ जाओ। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक बहुत समझदारी की बात उन्होंने कही है कि जो अभी इन बच्चे जो है, दे जस्ट ऑल वांट टू गो आउट, उनको भी अपना परिवार के लिए जितना भी करना चाहिए वो कर नहीं पाते, बिकॉज व्हेन दे गो आउट, फिजिकल डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे बाहर चले गए वहाँ तो उनकी नौकरी वहीं मिल जाती है, देन अगेन दे आर अनेबल टू कम बैक एंड आपका अपने देश में सेवा करना। मगर इनके साथ बातचीत करने के बाद हमें ये लग रहा है कि यहाँ तरीका है, और अगर कोई चाहता है कि हम करें तो उसका भी उपाय है। सो नीलाशीष जी, इट्स लवली डिस्कशन वी हैड टुडे इन आवर शो. Thank you for coming to my show, and thank you so much.